Hello students, welcome in your English class. Today we are going to learn a poem, Little Things. This is 13th lesson of your English Rainbow book. Learning outcome of today's session is you will be able to recite the poem with proper rhythm and intonation. We will start the poem. Before that, students, you all know that importance of little things is very great and very much to be paid attention with. This is what this poem expresses and very beautifully. This poem is written by Julia A.F. Carney. She was an American poet, author, writer and editor. The poems written by her are very melodious and took place in the syllabus of most of the school literature. The theme of the poem highlights the theme of importance of every little things in our life. Little things add up to the much bigger ones. As you know, हर छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर के बड़ी चीज़ें बनती हैं. Likewise, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बूंद बूंद पानी से कोई भी बर्तन हम भर सकते हैं. इसी तरह से आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से भरती गागर और गागर से भर जाता सागर. जब पानी बहुत कम होता है उन दिनों में, या जब नलके में पानी बहुत कम आ रहा होता है, तो हम लोगों का क्या प्रयास होता है? वी ट्राई आवर बेस्ट टू स्टोर वाटर, टू सेव वाटर. एक एक नल से जब बूंद गिर रही होती है तो हम इंतजार कर रहे होते हैं बर्तन के भरने का. तो बच्चों, बूंद बूंद से बर्तन भर जाता है और बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है. यही विश्वास हमको जगाती है ये पोयम. जिस तरह से एक गार्डन होता है तो उसमें बहुत तरह तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, एंड these all make a beautiful garden. Means the beauty of things also lies in small things. Likewise, we live in a democracy and democracy depends on votes. वोट्स की इतनी वैल्यू होती है कि एक एक वोट डेमोक्रेसी में बहुत कीमती समझा जाता है. ठीक उसी तरह से जो एक ताकतवर तंत्र है हमारा डेमोक्रेसी, उसकी ताकत एक एक वोट होता है. ठीक इसी तरह से आप समझिए कि ये जो क्लास है इतनी प्यारी सी, आप सब बच्चों से मिलकर के बनी है. हमारी इस क्लास में हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा अलग है. और इन क्लासेस को अगर हम मिलाते हैं तो सारी क्लासेस को मिला मिला के क्या बन जाता है? स्कूल बनता है. तो बच्चों, इसी तरह से स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरे इंस्टीट्यूशन को मिला करके विलेज या सिटी, और सिटीज को मिला के स्टेट्स, और इस तरह से कंट्री, और फिर इस तरह से बड़े स्तर पे जाएं तो दुनिया बनती है. यहाँ पर जरूरत इसी बात की है कि हम छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझें, उनको वैल्यू दें. अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए. एक छोटा सा प्रयास इसी पोयम को लिखने के लिए जूलिया A.F. कार्ने ने किया था. यू शुड बी अमेज्ड टू नो, इन द स्टार्टिंग शी रोट ओनली अ फ्यू लाइन्स ऑफ दिस पोयम, बट soon she became very famous for writing these lines and asked to
write more, and more lines were added. And here, this is good luck. We are going to read this poem today. First, we will recite this poem. I will recite, you listen it, how I am pronouncing, where do I take the pause. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. See the little movements, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus, our little errors lead the soul away from the path of virtue, far into stray. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. These are the lines of the poem. इन लाइंस को अच्छी तरह से हम लोग और बेहतर तरीके से रिदम के साथ में अगर पढ़ें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा. You know students, the beauty of a poem lies in its rhythm. Rhyming words are the soul of a poem. We will later on recognize rhyming words and learn about them. First of all, I will like to say that a poem should be learned by heart because it comes from the heart of a poet and it comes so spontaneously, it touches our hearts. पोएम्स जो होती हैं वो बहुत नेचुरली हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत सारा कुछ कह जाती हैं. इसीलिए पोएम इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स. आप लोग भी देखते हैं कि बचपन में कोई भी गाना गाकर कही हुई बात बहुत जल्दी से याद हो जाती है. यहाँ तक कि बचपन में छोटी क्लास में पढ़ी हुई पोएम्स जब आप बड़े हो जाएंगे तब तक आपको याद रहेंगी. तो क्यों ना इस पोएम को बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, रिसाइट करें और फिर याद भी कर लें. तो थोड़ा सा आपको इसका म्यूजिकल टच भी पता होना चाहिए. आइए, कम विद मी एंड रिसाइट द पोएम. Little drops of water, little grains of sand. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little drops of water, little grains of sand. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble though they be, so the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Thus our little errors lead the soul away. Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, far in sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love, little deeds of kindness, little deeds of love, help to make earth happy like the heaven above. Help to make earth happy like the heaven above. So beautiful are these lines. आइए इनको और बेहतर समझने के लिए इनका हम हिंदी में भावार्थ समझ लेते हैं. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी पानी की बूंदें, उनसे मिलकर के एक शक्तिशाली महासागर बन जाता है. बच्चों, इट माइट बी कि मोस्ट ऑफ यू हैवंट
सीन ओशन। आप में से ज़्यादातर ने ओशन नहीं देखा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने कभी टीवी में या अपनी किताबों में पिक्चर्स में ओशन को देखा हो तो। और मैं बता रही हूँ आपको, ओशन बहुत ताकतवर होता है, बहुत माइटी होता है, बहुत पावरफुल होता है। ओशन की लहरें इतनी बड़ी बड़ी चीजों को भी धक्का देते हुए किनारे तक आती हैं, आवाज करती हैं तेजी से, लेकिन ये माइट, ये ताकत, ये सब भी कैसे बनती है? इकट्ठा होने से बनती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द ओशंस। छोटी छोटी पानी की ही बूंदें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक महासागर बन जाती हैं, और महासागर बन करके इतना बड़ा ताकतवर पानी का स्रोत बन जाती हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, इसी तरह से बालू के, मिट्टी के, चट्टानों के जो बारीक कण होते हैं, उनसे मिलकर के हमारी ये पृथ्वी, हमारी इस धरा का निर्माण हुआ है। हम लोग जहाँ रहते हैं, आप लोग देखते हैं खुले में जाते हैं तो मिट्टी दिखाई देती है, फिर मिट्टी से और सैंड वगैरह से मिला करके हम लोग अपने घरों को भी बनाते हैं। तो वही सैंड अलग अलग रूप में हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है, और एंड द प्लेजेंट लैंड, और रहने लायक भूमि हमारे लिए, खुशहाल जमीन हमें मिलती है। इसी पर हम खेती करते हैं, इसी पर हम मकान बनाकर रहते हैं, इसी पर खेलते कूदते हैं, और इसी पर सारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे की पंक्तियों को देखें, लाइंस। सो द लिटिल मोमेंट्स humble though they be make the mighty ages of eternity। जो हम लोग टाइम है, अपना समय है, उसको भी वैल्यू दें, उसके छोटे छोटे पल को यूज करें, यूटिलाइज करें, और उसको जिएं भरपूर तरीके से। ये मैसेज भी कन्वे कर रही हैं पोएट हमें यहाँ पर, कि किस तरह से जिन हम छोटे छोटे मोमेंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोच करके क्या फर्क पड़ता है? नो, फर्क पड़ता है, और इस फर्क को ही हमें रियलाइज भी करना चाहिए अपनी लाइफ में। छोटे छोटे पलों से मिलकर सेकंड्स, सेकंड से मिलकर मिनट्स, या मिनट से मिलकर घंटे, और घंटों से मिलकर दिन, फिर उसका बड़ा यूनिट सप्ताह, सप्ताह, मंथ, फिर मंथ को फॉलो करते हुए ईयर, और सालों साल मिला करके शताब्दियां और इतिहास भी इसी तरह से हमारे सामने युगों के रूप में आते हैं। कहने का मतलब बच्चों, जो इतना बड़ा समय है, उसका सबसे छोटा यूनिट अगर हम महत्व नहीं देते हैं, उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम अपना और समाज का, मनुष्य जाति का भी नुकसान कर रहे होते हैं। आगे देखें। Thus our little errors lead the soul away from the path of virtue, far in the sin to stray। छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पोएट ने कहा है कि कई बार हम जो गलतियां करते हैं ना, इसमें भी ऐसे ही सोचते हैं, अरे तो क्या हो गया। नो, ये छोटी छोटी गलतियां कई बार इतनी हानिकारक होती हैं कि हम लोगों को सही रास्ते से एकदम अलग कर देती हैं, और वो रास्ता कई बार ऐसा होता है कि हमको भटकने जैसा महसूस होता है। और तो और जब भटकाव ज्यादा हो जाता है, स्ट्रे ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम अपनी सुविधा के लिए कई बार गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसीलिए पोएट कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए शुरू से ही कि हम गलतियां करने से बचें। छोटी छोटी गलतियां मिलकर के कई बार हमें उस रास्ते पे ले जाती हैं जहां पर हमारे किए गए गलत कामों को पाप की संज्ञा दे दी जाती है, और फिर पाथ ऑफ वर्च्यू, जो अच्छाई का रास्ता है, उससे हम भटक जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं?
स्ट्रे करने के लिए, भटकने के लिए मूव कर जाते हैं। आगे समझें। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव। डीड्स छोटी छोटी काइंडनेस की, या हमारे ऐसे काम जिससे लोग खुश होते हैं, उससे खुशहाली बढ़ती है। आसपास के माहौल में हम लोगों के तरक्की करने के भी रास्ते खुलते हैं। अगर हम नाराज होंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो क्रिएटिव वर्क कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि हम दया दिखाएं, खुश होके बोलें, तो हमको रिस्पॉन्स में भी वैसा ही माहौल मिलेगा और सब मिल करके समाज के लिए, मानव जाति के लिए अच्छे काम शांति के माहौल में कर पाएंगे। और फिर हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारे रहने के लिए एक बहुत खुशहाल जगह बन सकती है। जिस तरह से हम लोग पृथ्वी पर जब परेशान होते हैं ना बच्चों, तो क्या सोचते हैं, स्वर्ग देखो कितना अच्छा होता है, वहां तो लोग इतने खुश रहते हैं। तो जो स्वर्ग की परिकल्पना की जाती है कि स्वर्ग में सुख होता है, स्वर्ग सुंदर होता है, स्वर्ग अच्छा होता है, तो वही स्वर्ग हम अपनी पृथ्वी पर भी अपने प्यार भरे शब्दों के माध्यम से और डीड्स ऑफ काइंडनेस, अपने अच्छे कामों से बना सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने जो अमेरिकन पोएट हैं, उनके इतने प्यारे से भावों को यहाँ पर पोयम में पढ़ा। होप कि आप अपनी लाइफ में भी उन चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए एफर्ट्स करेंगे फ्रॉम टुडे, राइट, फ्रॉम टुडे। से ओके, ओके। नाउ टू अंडरस्टैंड बेटर द मीनिंग ऑफ द पोयम, वी गो थ्रू द वर्ड मीनिंग। जो भी वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं, नए हैं, कुछ बच्चों ने हो सकता है पहले भी पढ़े हैं, पहले की बुक्स में पढ़े होंगे क्लासेस की, या आप लोगों ने सुने भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है वो पूरी तरह से नए हो, तो उनसे परिचय कराया जा रहा है आपका। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। एरर्स, एरर्स मीन्स गलतियां। लीड, ले जाती हैं। सोल, आत्मा। पाथ, रास्ता। वर्च्यू, गुण या अच्छाई। एटर्निटी, कभी खत्म ना होने वाला, इसको कहेंगे अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा समय। स्ट्रे, भटकना। ग्रेन्स, दाने। इंग्लिश में बोलें तो दूसरा शब्द पार्टिकल्स, कण। सैंड, सैंड का मीनिंग है हिंदी में बालू या मिट्टी। माइटी, शक्तिशाली, ताकतवर। ओशियन, ओशियन का मीनिंग है समुद्र या महासागर। प्लेजेंट, सुहावना। मोमेंट्स, पल, क्षण। जैसे हम टाइम को काउंट करने के लिए सेकंड्स और मिनट्स ये सब बोलते हैं, उसी तरह से मोमेंट्स का मतलब होता है समय का छोटा यूनिट, क्षण। एजेस, युग, ये समय को समझने के लिए बड़ा यूनिट हो गया, एजेस, युग। हम्बल, विनर्व। डीड्स, क्रियाएं। हेवन, स्वर्ग। अर्थ, पृथ्वी। सिन,
पाप। इस तरह से बच्चों आप लोगों को जो इस पोयम में वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग क्लियर करने के लिए साथ में लगी हुई पिक्चर्स हैं, उनको देखने से भी थोड़ा आप समझ सकते हैं बेहतर। ये एक व्यक्ति जो रास्ते में खड़ा है, रास्ता तय किया, फिर दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं उसको। ही इज थिंकिंग वेयर टू गो, विच पाथ इज टू फॉलो। जब हमें इस तरह का डिसीजन लेने में कठिनाई होती है तभी कहा जाता है भटकने की स्थिति। अगर हम गलत रास्ते पे चले गए, सही रास्ते को नहीं चुन पाए, तो इसको कहा जाएगा स्ट्रे। इसी तरह से एरर को मार्क किया हुआ है यहाँ पर, तो ये एरर तो ऐसा है जो लिखने में हुआ है। इसी तरह से कई बार आप लोगों के कंप्यूटर पे आप काम कर रहे होते हैं या मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं तो एरर शो हो रहा है, आप ऐसे बोलते हैं, तो एरर का मतलब होता है गलती। होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। Now we will practice using these words in our sentences. A few I am doing for you and the rest of the words you will do, you will make sentences with them. Grains. Grains का मीनिंग आप लोगों को पता चला, अभी बताया गया था। Grains का मतलब होता है छोटे दाने। इसका सेंटेंस में यूज करते हुए देखिए कैसे लिखा गया है। रीमा लाइक्स लॉन्ग ग्रेन राइस। सेंड, वी यूज सेंड इन कंस्ट्रक्टिंग आवर हाउसेस। इसी तरह से ओशियन वर्ड को किस तरह से हम अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। आई हैव नेवर सीन ओशियन। एरर्स, अभी आप लोग ने सुना था, आपको पता चल गया। एरर्स मतलब त्रुटियां, गलतियां। माई कंप्यूटर इज शोइंग एन एरर। नेक्स्ट, स्ट्रे। स्ट्रे एनिमल्स शुड नॉट बी टारगेटेड। स्ट्रे एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे गली में घूमते हैं या खुले जो घूमते हैं उनको स्ट्रे एनिमल्स कहा जाता है।